हाउ यू क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर ब्रांड क्योंकि मिंत्रा उस समय काफी डोमिनेट कर रहा था India में luxury consumption is about finding pockets of riches. एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अमेजोन. The scale at which Amazon operates, छोटी सी भी गलती 100x multiply होती है. टॉक मी अबाउट 10xer क्लब. व्हाट इज दिस और ये आप क्या बिल्ड कर रहे हो. So this is primarily built for people in the marketing ecosystem. कॉलेज के करिकुलम को भी थोड़ा ट्वीक होना चाहिए. यार मेरे को तो लगता है कि I think business schools are failing. एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डिफरेंट अपस्किलिंग प्रोग्राम्स जो लोग मार्केटिंग के नाम पे लॉन्च करते हैं. A lot of them are value adds. ठीक है, ऐसे नहीं है कि देखो सब खराब है. Hi everyone, welcome to a new episode of Salary Talks. This is a crossover episode between brands, brews, banter, and salary talks. I have with me my good friend Harinder, and we are here going to talk about career, upskilling, marketing, and everything that will be very exciting for you. So, welcome Harinder, welcome to the show. And since the name is Salary Talks, so Yeah. first mandatory question is to understand what you are doing currently and what is your career journey has been. Cool. Yeah, first of all, very happy to be here. I think I've been watching a lot of clips that you post out on social. मतलब बहुत सही. Absolutely love the format and the value that you're bringing to so many groups of people. It's absolutely amazing stuff. So for my journey, I think has been quite asynchronous. I think currently what I'm doing is I'm trying to build 10x Club, which is an invite-only community, and I'll talk about a little more about what we are kind of trying to do within upskilling and hiring and like bunch of things for working professionals. But before that, right before this, I was with Amazon. Okay. तो Amazon में कुछ interesting चीज़ें की Amazon fashion के अंदर. So I was with Amazon for a couple of years. Did a few interesting projects. उससे पहले I was with Reliance. So Reliance, I was there for a slightly longer duration. I started as marketing head for Diesel, and which is a premium denim brand, which is a JV between Reliance Retail and Diesel Italy. And after that, did some interesting projects on White Crow, Satyapal, Hamleys, bunch of other interesting brands in the retail space, all premium retail. But my last and I think my favorite role, which I did within the Reliance ecosystem, was when I was doing marketing for Ajio Lux. Right. So जब Ajio Lux किया तब ये भी नहीं था कि Ajio Lux को बोलेंगे क्या. मतलब from that point to scaling it to becoming the market leader in premium e-commerce fashion. So that was a good journey. Before that, I worked in smartphones, electronics, bunch of other places. So that's what the journey has been like. Got it. So, to all of you who don't know Harinder and I are from the same college, IMT. He is my senior there. So, Ajio Lux की बात करते हैं अगर. So, how you created this particular brand? क्योंकि मिंत्रा उस समय काफी dominate कर रहा था. Yeah. And all the big brands were there on Myntra as well. So, how you went about that whole process? Yeah, I think to understand the need for Ajio Lux, right? I think we need to understand what time पे हो क्या रहा था, right? So very simply, we know that there was an online to actually offline to online migration, right, which was generally happening. क्यों हो रहा था? And that was accelerated through the pandemic. कि people who were going to a UB City, Palladium, DLF Emporio, they had started shopping online. But now there was a big gap कि कुछ brands ऐसे हैं जो आपको online नहीं मिलते, right? Certain segments of consumers were not being serviced on online channels, right? So that is the issue. Now the thing is, in India, we need to understand that unlike US and China, the luxury consumption in India is not centered in one area or in the metros. Like for example, US में there's a East Coast, West Coast kind of a story. Right. China, everything is concentrated towards the coast. India में luxury consumption is about finding pockets of riches. So it is about finding those 100 rich families in Ludhiana. It's about finding those 50 rich families in Vijayawada and everybody else. Of course, the metros and the top 8 cities continue to उनका बहुत अच्छा contribution होता है, but उसके बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा action है. तो अगर आप डीजल का स्टोर खोलना चाहते हो, लाइक या अगर आप टिफिनी का स्टोर खोलना चाहते हो, लुधियाना के अंदर देयर इज कंजम्पशन, विजयवाड़ा के अंदर देयर इज कंजम्पशन, बट यू वोंट बी एबल टू ओपन अ स्टोर बिकॉज वहाँ लग्जरी मॉल, लग्जरी रिटेल एग्जिस्ट नहीं करता. और डिपेंडेंट उतना प्रॉफिटेबल होता नहीं है. Absolutely, right? So उतनी फुटफॉल नहीं है, उतनी many other things are there, right? So what can you do? You can create a format in which you are able to service all of these cities and kind of do that, right? So Ajio Lux was first. मतलब the need, उसकी need ये थी कि यार we want to now look at the next wave of luxury consumption in the country. And they were early experiments with Tata Click Luxury, मतलब अच्छे very good solid experiments. So that was the entire rationale behind it. जब उसको create करने की बात आई, तब आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि डज इट स्टैंड अलोन एज अ ब्रांड, कि उसको लेट्स कॉल इट lux.com or something, right? Let's just call it that. Or does it
stand with Ajio. और वो time पे if you see Ajio's positioning was very mass, heavily reliant on premium, mid to premium brands, but mostly private labels. Right. Right, so उनके ASP ऐसे था कि यार आप Ajio पे luxury कैसे बेचोगे, right? That was always a challenge. And I think now the experiment has been largely a success. So पहला तो question ये था उसको बोलेंगे क्या, उसको बनाएंगे क्या. But the thing is, in case you have the right brand partnerships, अगर आपके पास सही brands की assortment है तो आप बेच सकते हो. और उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस है जो ऑब्वियसली Ajio हैज सर्टेन स्केल, they have certain understanding on tech, on last mile, bunch of other things, so you kind of piggyback on that, and then you bring your own brand assortment and you're able to create a good business, which is what Ajio Lux has been able to do. Got it. And I think Reliance being the parent company also brings that nuance also कि बहुत ज़्यादा market को लेके they are hyper competitive, and Yeah. I think execution would be much faster compared to somebody else who would have maybe like to come and take heads on competition with Myntra, क्योंकि Myntra already इतना बड़ा हो Absolutely. चुका था. ये रिलायंस का मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब फंडामेंटल है. मतलब लाइक आई स्पेंड 4 years एट रिलायंस, एंड लोग काफ़ी बार ऐसे कहते हैं कि यार रिलायंस में अगर आपने 1 साल बिताया तो आपने 3 साल का काम कर लिया, राइट? बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंटेंस, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. Typical traditional business नहीं है वो. बिल्कुल नहीं, राइट? मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट बिजनेस. आई केम इन विद अ सर्टेन प्री कंसीव्ड नोशन यार कि कैसा होगा, क्या कल्चर है एंड एवरीथिंग. बट आई टेल यू 4 थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी सेंट्रल अबाउट रिलायंस, राइट? मतलब कोई भी रिलायंस कंपनी हो, कुछ ईथॉस उनकी बहुत ही कोर होती है. एक, बीइंग एबल टू टेक एक्चुअल लॉन्ग टर्म बेट्स, कि हम बना देंगे and we will be the last person standing. That is one, and you will see it in many other businesses, right? मतलब चाहे टेलीकॉम ले लो, पेट्रोकेम ले लो, they'll just take long term 20 year 30 year bets, and वो कर सकते हैं. Second is taking actual long term bets on people, जो हर कंपनी बोलती है, which all the best companies in the world say. But can you bet on a leadership position on a 28-year-old? जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज में दिस इज समथिंग व्हिच यू कांट इवन थिंक अबाउट, राइट? हाँ, इतनी हायरार्की कहाँ से होगा? इतनी हायरार्की होती है आपके ऊपर, ये मतलब सो मोस्ट CXOs विल बी 45 प्लस, दे विल बी पीपल हु विद 20-25 years ऑफ एक्सपीरियंस. आपको सब 30 years old मिलेंगे, मतलब हु विल बी पीपल हु आर एक्चुअली टेकिंग CXO रोल्स, मतलब विद इन द रिलायंस इकोसिस्टम. और उसमें ये है कि यार इन केस यू आर विद अस, वी आर फोकस्ड ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वी विल इंश्योर यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, Right. so they're very transparent about it. और कंपटीशन का भी लाइक यू सेड ना, अगर मिंत्रा के साथ अगर आप कंपटीशन कर रहे हो, रिलायंस का जो कोर इथॉस ये है यार कि हम compete करेंगे, वी विल compete very very hard, एंड वी विल बी पब्लिकली अनअपोलोजेटिक. यार हम जो करेंगे हम जीतने के लिए करेंगे, और उसमें कोई प्रिटेंस नहीं होगा, कोई PR नहीं होगा. So that is the thing. And Myntra was already there, of course. They did not have a very flourishing luxury, premium और luxury में वो बहुत ज़्यादा struggle कर रहे थे, and they continue to struggle. But Tata Click continued to do well. But most of the brands being retailed on Tata Click luxury continued to be Reliance partnerships, Right. which are now almost exclusively available on Ajio Lux. So that is a Reliance way of doing things. And how is this different from Amazon? Amazon में तो completely big tech का culture, and how fast is the execution out there? Yeah, Amazon ka, if I'm very honest, there are a few things which are amazing, right, about Amazon, right? And of course you work in big tech, तो ये आपको पता ही होगा, right? कुछ चीज़ें like इतनी process orientation मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी. Like ये कि आप इतनी डेप्थ में जा रहे हो, यू आर राइटिंग डॉक्स फॉर एग्जाम्पल. कुछ चीज़ें जो अमेजोन के बारे में, सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी टिपिकल. नंबर 1, व्हेन यू स्टार्ट अ मीटिंग ऑफ 1 hour, 40 मिनट कोई नहीं बोल रहा, 40 मिनट सन्नाटा है, बिकॉज एवरीबडी इज रीडिंग अ डॉक. तो दैट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू. और उसके बाद 20 मिनट डिसीजंस हो रहे हैं, 40 minutes इज जस्ट म्यूट, विच इज समथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग देयर, PPTs आर आउटलॉड. आप प्रेजेंटेशन यूज ही नहीं कर सकते. यू कैन ओनली यूज रिटन डॉक्यूमेंट्स. एंड उनका फंडा ये है यार, ओनली इफ यू रिटन डाउन 6 pages ऑन व्हाट यू आर प्रपोजिंग, आपने उसमें उसको उतनी डेप्थ से तभी देखा होगा कि आप उसको प्रपोज कर पाओगे. सो सर्टेन थिंग्स आर वेरी टिपिकल, 1, अमेजिंग. 2, 3 टेक अवे स्लाइड पे नहीं होते जो कुछ नहीं उन्होंने बोला. और उसमें स्लाइड में their hatred towards presentations is also on the fact कि somebody can be a gifted speaker, somebody can be a charismatic leader, but अगर आप डॉक दे रहे हो, तब उसने जूनियर मोस्ट बंदे ने बनाया या सीनियर मोस्ट बंदे ने बनाया, that doesn't matter. थॉट प्रोसेस लगाने थॉट प्रोसेस उसमें, डेटा, थॉट प्रोसेस, रैशनल डिसीजंस रिक्वायर्ड, सब कुछ लिखा हुआ है. सो इवन इफ यू आर नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, तो क्या होता है कि somebody is not presenting well, immediately आप शट ऑफ हो जाते हो, अरे अरे ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, राइट? So वो it's good in that sense, right? So a lot of things.
But to be honest, at least the part of Amazon that I saw, I think I have seen better speed in other companies in terms of speed of taking decisions. But यार उनको blame नहीं कर सकते. मतलब to be honest, the scale at which Amazon operates, छोटी सी भी गलती 100x multiply होती है, right? So हाँ, they don't have the experimentation bravado which a lot of smaller companies can have. रेपुटेशन रिस्क भी रहता है काफी ज्यादा. Reputation risk is the main thing, right? मतलब lot of for example a Reliance, even some of the smaller brands can come in and say यार ठीक है चलो देखी जाएगी, right? Amazon में बहुत ripple effect होता है of everything, and they want to be sure of everything. They want to dot all the i's, slash all the t's. वो हर चीज करनी है, right? So that for different stages of your life, कभी आपको लगेगा यार मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, कभी आपको लगेगा नहीं यार मेरे को फाइट मारनी है अभी. सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ, यू वुड वांट टू से गो टू बिग टेक और डू समथिंग एल्स. गॉट इट. टॉक मी अबाउट 10xer क्लब. व्हाट इज दिस और ये आप क्या बिल्ड कर रहे हो? Yeah, 10xer Club, I think इसकी start was a very basic and universal pain that we all have, right? So the pain is that whenever you want to learn something, अब इशू ये है कि ज्ञान बहुत ज़्यादा है, राइट? एंड देन वी आर ऑल्सो कल्परेट्स बिकॉज हम ज्ञान में ऐड कर रहे हैं अपनी अपनी पॉडकास्ट डाल के, राइट? बट द इशू इज कि जब आपको एक्चुअली कुछ सीखना है, व्हेन यू एक्चुअली वांट टू लर्न समथिंग, ज्ञान है, बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब वीडियोज हैं, बट देयर इज नो एक्चुअल प्लेस वेयर यू कैन लर्न फ्रेम स्टफ यू कैन अप्लाई टुमारो. सुनने में बहुत अच्छा लगा. मे बी आई पिक्ड अप 5 new things from a 1 hour podcast or 5 new things from a 300-page book. But can you actually get tools, frameworks, blueprints which can help you tomorrow in your work, right? So there is a big gap, especially, and very strong in marketing, right? So this is primarily built for people in the marketing ecosystem, right? So marketing, performance, media, PR, advertising, all of associated realms. And then the other thing is on the other end of the spectrum. So upskilling is definitely a problem. On the other end of the spectrum, अगर आप देखो तो यार जब भी आप हायरिंग करने जाओ या हायर होना चाहते हो, तो आप दुनिया भर के लिंक्डइन प्रीमियम ले लो, आप नौकरी प्रीमियम ले लो, सब कर लो, राइट? आपके 50,000 कनेक्शंस अगर होंगे लिंक्डइन के ऊपर, आप 100 लोगों को डीएम कर लो, नथिंग वर्क्स. एंड दैट इज द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबॉडी कि यार डीएम मैं किसी को भी करता जा रहा हूँ, नहीं काम बन रहा है, राइट? अनटिल पहले से एक्विंटेंस नहीं है. एब्सोल्युटली. या तो अगर वार्म है, फॉर एग्जांपल इफ आई नो यू, आई कैन से यार कि ठीक है यार मेरे को मेरे टीम के अंदर ब्रांड मैनेजर पोजीशन है, तो मेरे को जस्ट गिव मी अ रिकमेंडेशन ऑफ 2 people दैट यू लाइक. अब ऐसे ही चल रहा है, राइट? स्पेशली मतलब दैट इज हाउ थिंग्स हैव बिकम. आई वाज स्पीकिंग टू अ वेरी सीनियर मार्केटर ना, समबडी हु इज द एक्स सीएमओ ऑफ Zepto. तो वो कह रहे थे कि आई वाज स्पीकिंग टू अ कंसल्टेंट और बात हो रही थी कि क्या क्या काम किया. दे सेड एक्विजिशन में दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड देन आई बिल्ट एन एट्रीब्यूशन मॉडल एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स ऐसे करके. एंड द कंसल्टेंट शी आस्क्स हिम कि ये सब ठीक है, आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग किया है क्या? विच मीन्स के जो बंदा फिल्ट्रेशन कर रहा है is probably the least qualified person to do the filtration, unfortunately. You junior उसको most. लिस्ट दे दी गई और वो लिस्ट में उसको देखना है कि कितने चेक बॉक्सेस Absolutely. हो रहे हैं और फिर आगे जाना है. Absolutely. उसको ये है यार कीवर्ड अगर मेरे को दिख गया या ये लोगो मेरे को दिख गया तो इसको आगे लेके जाना है, नहीं तो सीवीज लाइक योर्स एंड माइन वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. सो आई एम सेइंग ग्रेट कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू फाइंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. दैट इज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड व्हेन दे वांट टू अपस्किल, उनको नहीं मिल रहा, राइट? सो इफ यू पास आउट ऑफ द एलीट कॉलेजेस तो आपको एलुमनाई नेटवर्क होगा इन एवरीथिंग, बट सम ग्रेट पीपल, ग्रेट टैलेंट आउट देयर डज नॉट हैव द एक्सेस टू डू दिस. So that was a need on which we started building 10xer Club. And why it's called 10xer Club, because एक fundamental belief है कि यार जैसे 10x इंजीनियर होता है, जिसको कहते हैं कि एक मिथिकल क्रीचर है कि उसका इम्पैक्ट, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग इज 10x बेटर देन द एवरेज पर्सन. आई थिंक मेरे को ये फंडामेंटल बिलीफ है कि यार इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी फील्ड, चाहे वो मार्केटिंग है, सेल्स है, वट एवर इट इज, राइट, दे आर 10x पीपल जो जेन्युइनली बाकियों से 10 टाइम बेटर है. So around that, can we create a community? People, and you learn from people you actually want to be like. So you learn. So we've got on board some of the best people in marketing, right? मतलब अगर when I was in B school, I would have paid twice my B school fees to be able to even get close to them in a room. So now we have about 16, 17 people who are literally the best people who are out there who can teach things like that. Cream of the cream in marketing in India. Absolutely. और उसमें भी मतलब it's not like general. Everybody has a certain speciality, right? Things which they have done. So अगर मैं Zepto की CMO की बात कर रहा हूँ, nobody has done retaining new users better than Zepto.
जब जेप्टो की रिटेंशन वेव इज चली, तो अगर रिटेंशन की बात करनी है तो नोबडी इज बेटर देन हिम टू टॉक अबाउट इट. अगर रिटेल में कुछ इनोवेशन की बात करें, नोबडी इज बेटर देन द पर्सन हु रन्स मार्केटिंग फॉर मैकडॉनल्ड्स. अगर लग्जरी की बात करनी है, nobody is better than the guy who runs marketing at Oberoi. For example, like that, we've got a amazing set of top marketers who will be working with a very tight knit community, and then we'll also ensure outcomes for these people, right? Because the right people come in, आप एक entry barrier लगाओगे, then they are treated and mentored by the best people out there. मतलब जिनका कोई comparison नहीं है. Because there are a lot of things which you and me आप जाओगे कि when you are working in a job, there's so many things you have to call a senior. Right, you have to call a boss's boss or somebody you worked with earlier. No professor in the country can give you answers to certain questions. This is where these people come in. And then you create a community and then you create hiring outcomes. So that is largely what it is what we are looking आई to थिंक build. टिपिकल यूज केस ये भी रहता है, इफ यू गेट प्रमोटेड तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो पूछने के लिए भी लोग अपने सीनियर्स या पीपल वर्किंग इन सेम डोमेन Absolutely. उनके पास जाते हैं. आई थिंक समथिंग वेरी सिमिलर वी आर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सैलरीड क्लब. So this will be basically set of professionals who are based in different cities. We're planning to launch Delhi, then we'll have one in Pune, we'll have one in Mumbai, और Bangalore भी did a recent launch. तो वही same intent है यहाँ पे भी कि Absolutely. bring people together, let them network with each other, and we'll just facilitate this because me as a person, मेरा presence हर city में नहीं हो सकता. So have these city based clubs, वहाँ के आप charter बना दो, वहाँ पे Yeah. किसी को कह दो कि पूरी activity lead करो, थोड़ा human angle लेके आओ. So what is something that you feel कि अभी की generation networking में miss out कर रही है, which we should maybe as a creator or as a founder you should work towards solving more, कि अभी networking में क्या miss हो रहा है? Is it human connection या क्या? यार, आई थिंक जो फंडामेंटल वर्ड है ना नेटवर्किंग, आई थिंक उससे बहुत लोगों को नफरत हो गई है. अनफॉर्चुनेटली, राइट? लगता है यार नेटवर्किंग कौन करेगा, एफर्ट लगता है. आई एम मे बी एन इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट नेचुरली अट्यून टू इट. सो वी शुड लुक एट इट एज नॉट प्योर नेटवर्किंग, बट क्या मैं अपनी सेरेंडिपिटी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकता हूँ, विच बेसिकली मीन्स डू आई नो इनफ पीपल जो मेरे लिए कल को वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिनके लिए मैं आज वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, विच इज़ द ऑपरेटिव वर्ड. नहीं तो आप विजिटिंग कार्ड्स या लिंक्डइन कनेक्शंस का स्टैक बनाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होगा. यू कैन गो टू एज मेनी मीटअप्स, हैव अमेजिंग कॉफी. कबन पार्क में बहुत अच्छे मॉर्निंग वॉक्स होते हैं, मतलब यू कैन कीप डूइंग दैट. आई थिंक व्हाट इज कोर ऑफ द नेटवर्क, एनी कम्युनिटी इज व्हाट आई हैव फाउंड, एंड आई एम रनिंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर. कम्युनिटी तभी चलती है कि अगर एक उसका जो फंडामेंटल पावर लॉ होता है कम्युनिटीज का, क्या होता है, 5 लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट, 15 लोग जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और बाकी 80 लोग जो हैं दे विल बी इनर्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. दिस इज अ लॉ ऑफ, मतलब इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद सब ये लॉ के आसपास कॉन्ग्रीगेट कर जाते हैं. नाउ दिस विल ब्रेक एंड इट विल बिकम अ सक्सेसफुल नेटवर्क कम्युनिटी, कुछ भी बोल लो उसको, राइट? ओनली इफ वन थिंग हैपेंस. If I spend 10 minutes on that community doing something, that can be exchanging some messages, doing some emails, whatever else, अगर उस 10 minutes का मेरे को 10x वैल्यू वापस आ रहा है, Right. so that tomorrow I can come back and say यार कि I was stuck somewhere at work, कुछ चीज़ मेरे को फिगर आउट नहीं हो रही थी, मैंने इमीडिएटली कम्युनिटी में मैसेज डाला, लोग ने बोला हाँ यार मैंने ये ट्राई किया था, ये मैंने आई ट्राइड एंड फेल्ड एट दिस, बट ये ट्राई कर ले. उससे हो सकता है 2 हफ्ते की मेरी मेहनत आधे घंटे में मेरे को आंसर मिल गया. दैट मीन्स आई हैव एक्सट्रैक्टेड वैल्यू फ्रॉम द कम्युनिटी. So only then will it become sustainable. So we need 10xer club and salaried club and 100 more to be able to solve this problem. Right. But the problem is so huge. Whether it is networking and community, whether it is upskilling, whether it is hiring, there are so many things fundamentally which are not working for people like us. Right. So hence you need all of these efforts. आई थिंक एंगेजमेंट एज यू राइटली टोल्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिमेंबर क्लब हाउस करके फिनोमेना आया था बीच में, एवरीबडी वेंट ऑन Absolutely. क्लब हाउस, लेकिन कुछ उससे रियल मीट कोई किसी के लिए निकल के नहीं आया. सो आई थिंक दैट फेडेड अवे क्वाइट क्विकली और क्वाइट फास्ट. Absolutely. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई सोशल मीडिया भी इंडिया से उतना निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग इंगेज करके वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है. दीज ऑल दी वेस्टर्न कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म्स दे हैव अ डिसेंट प्रेजेंस हियर बिकॉज एटलीस्ट पीपल आर एबल टू यूज देम. लिंक्डइन में कुछ नहीं तो आज की डेट में अगर 1000 में एक की भी जॉब लग रही है तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जा रहा है. Yeah. I think that is out there. One thing that yesterday during interaction what we also understood कि अभी लोगों के बहुत ही genuine questions हैं. मतलब questions are around making a career pivot from say somebody working in an analyst role to a product management role or going to a management consultant role. Is this also something on your radar in 10xer club कि आप इस तरह के drastic switches भी enable कराने का देखोगे? Not currently, यार. I think we are not considering the product that we are building, the service that we are building. हम इसको अभी facilitate नहीं कर पाएंगे. What we will be able to do that if you
फॉर वट एवर रीज़न कि आपके स्किल सेट के अंदर कुछ चीज़ें कच्ची हैं, कुछ चीज़ें पक्की हैं, राइट? यू मे बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट परफॉर्मेंस, बट मे बी ब्रांड की जब बात आती है या आपकी ई कॉम की मतलब जब बात आती है, तब प्रॉब्ली एक्सपोजर की वजह से आपको यू डोंट हैव दो स्किल सेट विच समबडी एल्स हैज. Can we, number one, ensure कि a person goes from 0 to 90 across multiple disciplines in the shortest amount of time? अब उसको अगर कोई बंदा सेल्स से आ रहा है मार्केटिंग के अंदर, इट बी अ हार्डर स्विच, राइट? बट इन केस अ पर्सन ऑलरेडी हैज सम लेवल, वी विल बी एबल टू हेल्प देम मच मच बेटर. बट आई डू फील अगर मैक्रो पिक्चर देखी जाए, पीपल डू वांट टू बी एबल टू क्रिएट स्विचेस, बिकॉज जिस तरीके से हमारे कन्वेंशनल करियर्स अभी चल रहे हैं, उसमें दिक्कत ये हो रही है कि what you do a lot of becomes a predictor of what you do more of, which Right. is sometimes what you don't want. Right. आपने 10 साल सेल्स की जॉब कर ली, maybe you are done with it. Now at that point in time it becomes very very difficult to start from scratch. Obviously उसकी economic value है कि आप एक compensation पे आ गए हो, उसके पे बाद कट लेना पड़ पे जाएगा. कट लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली, आपने होम लोन ले लिया, कुछ कर लिया, तो बोलने में अच्छा लगता है यार कि मैं फंक्शन स्विच कर रहा हूँ, बट वो होता नहीं है किसी को, राइट? और काफ़ी लोग जो मैंने ये देखा है कि लॉट ऑफ पीपल से यार मेरे को सेल्स से मार्केटिंग में आना है, और बियॉन्ड अ पॉइंट 10 साल हो गए एंड दे स्टिल वांट टू मेक दैट स्विच, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज व्हाट यू शुड कंटिन्यू डूइंग. बट हमारा जो इकोसिस्टम है, जो कंपनीज का इकोसिस्टम है, रिक्रूटर्स का इकोसिस्टम है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दैट अगेन यू विल मीट अनदर रिक्रूटर हु विल फील यार इसने तो कुछ किया ही नहीं है. यू माइट बी द बेस्ट पर्सन आउट देयर टू गो फ्रॉम एनालिस्ट टू प्रोडक्ट मैनेजर, बट कैन यू हैव समबडी हु कैन टेक योर हैंड एंड से यार कि चलो इसका हाथ पकड़ के मैं इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ? तो वो अर्ली करियर में स्टिल डूएबल, मिड टू लेट करियर में इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. आई थिंक मिड टू लेट करियर में अगर आप कोई एमबीए कॉलेज भी चले जाते हो तब भी वहाँ ये फैसिलिटेट नहीं होता. आई थिंक दिस Absolutely. बेसिक थिंग इज मिसिंग. एमबीए में जैसे हमें भी मार्केटिंग पढ़ाई गई, Yeah. पर वो मार्केटिंग कुछ नहीं है जो आज आप रियल ऑन दी जॉब कर रहे हो. तो यू कुछ फील नहीं. कि कॉलेज के करिकुलम को भी थोड़ा ट्वीक होना चाहिए फॉर यू टू एटलीस्ट हैव सम बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस नॉलेज कि ई कॉम की थोड़ा मेरे को आना चाहिए, थोड़ा परफॉर्मेंस भी. यार मेरे को तो लगता है कि आई थिंक बिजनेस स्कूल्स आर फेलिंग पीपल. मतलब आई हैव अ वेरी एंटी बिजनेस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू नाउ. और वो वेरी बेसिकली क्यों है? मार्केटिंग में तो 100%, राइट? इफ यू सी and I wrote also recently on LinkedIn के B schools have become the worst place to learn marketing now. और बहुत प्रोफेसर्स ने एग्री किया. I'll tell you why, and I'll first give you a disclaimer of why I've come to this kind of hard conclusion. मैंने 2019 में PhD चालू की थी at one of the better schools in the country, right? So I'm halfway through that. मैंने पेपर लिख लिए, वो कर लिया, सारा कुछ कर लिया. माई फंडामेंटल कंक्लूजन इज नाउ कि एकेडेमिया और प्रैक्टिशनर वर्ल्ड, ये दो अलग दुनिया जो कभी आपस में नहीं मिलने वाली. आप उसको टोकनिज्म की तरह बोल सकते हो कि हमने इंडस्ट्री एक्सपोजर कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने केस स्टडी को राइट कर ली. इनके इंसेंटिव्स अलग हैं, राइट? दे आर इंसेंटिवाइज्ड ऑन पब्लिकेशन, ऑन बंच ऑफ अदर थिंग्स. हियर यू आर इंसेंटिवाइज्ड ऑन सम वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो उन दोनों का कोई मेल नहीं है. अब आप अगर एग्जैक्ट एजुकेशन करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू से कि यार अभी मेरे को 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, मेरे को कुछ और करना है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड चला जाता हूँ. चलो मैं आई विल बी क्लोजर होम. हार्वर्ड स्टैनफोर्ड तो चलो ठीक है, बहुत लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. उनकी टारगेट एड्रेसेबल मार्केट क्या हो जाती है? उनका ये होता है यार कि ठीक है कोई IIM कोर्स करवा रहा है, 6 महीने का 1 साल का कोर्स है, और उसके बाद मेरे को एलुमनाई स्टेटस मिल जाएगा, जो नेटवर्क अनलॉक करते जो मेरे को नेटवर्क अनलॉक करके देगा. अब उसमें दिक्कत क्या है? ये हमने फरवरी में मैंने एक रिसर्च की थी, उसमें 116 लोग थे, उसमें से 28 लोगों ने ऐसा कोर्स किया था. मैंने सबके साथ बहुत डीप, मतलब सम ऑफ देम वर इवन 90 मिनट क्वालिटेटिव इंटरव्यूज. उसका सारांश ये निकल के आया है. बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 1 इज दैट जब आप एग्जैक्ट एजुकेशन कोर्स करते हो, इट इज ऑफन टॉट बाय द यंगेस्ट प्रोफेसर. जो आपके स्टार प्रोफेसर है वो PGP कोर्स पे फोकस कर रहे हैं. ओह. ठीक है, तो यंगेस्ट प्रोफेसर मेरे साथ में, लाइक पीपल डूइंग PhD विद मी, वन ऑफ देम वाज 27 ईयर ओल्ड. शी इज नाउ प्रोफेसर एट वन ऑफ द ओल्ड IIMs. नाउ आई एम श्योर शी इज ग्रेट, एंड मतलब आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. बट मार्केटिंग जैसी चीज अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हो, देयर इज वेरी लिटिल वैल्यू दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड, राइट? यू माइट बी एबल टू कि किसी और की थ्योरीज आप प्रोपोगेट करके उसको थ्योरेटिकली ऐड करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट नहीं हो पाएगा. वन इज दैट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज कि अभी टेक्स्ट बुक्स हमारी वही 40 साल पुरानी है. तो 40 साल पहले भी कॉटलर पढ़ रहे थे, आज भी कॉटलर पढ़ रहे हैं, 20 साल बाद भी कॉटलर ही पढ़ेंगे. एडिशन चेंज होते रहेंगे. एडिशन चेंज होता रहेगा, राइट? और उसमें काफी प्रोफेसर्स दे हैव रिटन चैप्टर्स एंड दे हैव इंसेंटिव्स टू इंक्लूड दीज बुक्स, राइट?
बट यार मैंने अभी 10 साल मार्केटिंग कर ली, मैंने कोई कॉटलेरियन प्रिंसिपल नहीं यूज किया आज तक, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर एवर यूज्ड एनीथिंग व्हिच आई लर्नड इन अ नहीं, मेरे को क्लासरूम। लगता है तो बेसिक फंडेज हैं जिनको फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अगर हाँ आपको कल को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हाँ आपको पता होना चाहिए किसके लिए बना रहा हूँ, कितनी प्राइस पे बना रहा हूँ और मेरा किस मार्केट में मेरे को लॉन्च करना है। आपने उस एसटीपी का नाम आ गया वहाँ पे, सो बेसिकली। हाँ। तो अभी दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक मार्केटिंग अगर स्पेसिफिकली देखें, एक कॉटलर स्कूल ऑफ थॉट है, एक बायरन शार्प स्कूल ऑफ थॉट है। अब वो कहते हैं कि यार ये सब बिल्कुल बकवास है, एसटीपी करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको मेंटल अवेलेबिलिटी फिजिकल अवेलेबिलिटी पे काम करना है। फिजिकल अवेलेबिलिटी सुपरमार्केट के अंदर भर दो, मेंटल अवेलेबिलिटी हर बंदे के दिमाग में होना चाहिए बिफोर दे स्टेप इनटू द स्टोर। सो दे हैव वेरी डिफरेंट थ्योरीज, देयर इज नो कंसेंसस। सो इशू इज के थ्योरीज भी जो हमें पढ़ाई जा रही हैं, दे आर 50 इयर्स ओल्ड, 60 इयर्स ओल्ड। केस स्टडीज ऐसी पढ़ाई जाती हैं कि जो एफएमसीजी फोकस्ड हैं, कि डव ने 1975 में ये किया था, उस टाइम पे ये हो गया, हार्ले डेविडसन ने 80s में ये ग्रुप बना दिया, वही 4 केस स्टडीज चल रही हैं। कनखजूरा टेशन कनखजूरा टेशन कब तक चलेगा यार वो? और उसमें आगे फिर द लास्ट प्रॉब्लम इज जो आपने पहले बोला, एलुमनाई स्टेटस। अब वो कितना बड़ा झूठ है वो हम सब जानते हैं। लाइक पीपल हु हैव डन इट, यू कैन स्पीक टू 10 पीपल इन योर नेटवर्क हु हैव डन दीज एग्जैक्ट हेड कोर्सेज कि यार इससे क्या तेरे को क्या मिला, तेरे को मिला नहीं यार। मतलब वन पर्सन इवन सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दे सेड यार मेरे को लगा कि यार क्या मैंने अपनी अपस्किलिंग पे इन्वेस्टमेंट की है या मैंने किसी न्यू एकेडमिक हॉस्टल ब्लॉक को सब्सिडाइज किया है। तो वो तो विच इज मतलब इतनी अनफॉर्चुनेट चीज है यार वो, कि आप सोच रहे हो क्योंकि कैश कॉ है ना, एग्जैक्ट एजुकेशन इज कैश कॉ, देन देयर इज पैसे तो नथिंग, वहीं बनते हैं, पैसे मेन तो वहीं बन रहे हैं। कोर्सेज से उतने नहीं निकलते हैं। एब्सोल्युटली। आपने वहाँ एक जगह ब्रांड बनाया पीजीबी कोर्स से, एंड लॉट ऑफ पीजीबी कोर कोर्सेज आर स्ट्रगलिंग टू प्ले स्टूडेंट्स, एंड इफ दे आर स्ट्रगलिंग टू प्ले स्टूडेंट्स देन एग्जैक्ट कोर्स में तो आप क्या आउटकम मान लोगे यार। मतलब एंड सो पीपल एंड अप गोइंग बैक टू देयर ओन नेटवर्क्स राइट। एंड सेइंग यार कि ठीक है अभी मैंने 10 साल सेल्स किया हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं। So they are, so B schools are failing marketers, which is 100% there. They are failing working professionals. There are very few schools internationally which are able to do some kind of justice, right? बट और द फीस इज सो हाई कि वो हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिर वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। 100% यार, अगर आप मतलब जैसे हार्वर्ड का जीएमपी वगैरह या कुछ कोर्सेज ऐसे देखोगे, दे आर स्टेलर कोर्सेज, वहाँ एक्चुअली आपका एलुमनाई नेटवर्क अनलॉक हो रहा है। 50-60 लाख फिर आप इन्वेस्ट भी तो कौन कर देगा रहे यार 50-60 लाख, इतना हमने एमबीए में नहीं दिए। हैं। ठीक है, आई डोंट नो आपके टाइम फीस क्या थी, मेरे टाइम पे तो यार काफ़ी ज़्यादा थी मतलब, बट लॉट ऑफ पीपल, अबाउट 70% ऑफ द बैच वाज ऑन स्टूडेंट लोन्स। राइट। अभी आप 70-80 लाख रुपए का स्टूडेंट लोन लेके अगर हार्वर्ड जीएमपी में पहुंच भी गए, लेट्स अज्यूम कि आप पहुंच गए, तो व्हाट वुड बी द आरओआई उसका, क्या कितना पेबैक पीरियड रहेगा उसका, और वो सारी चीज़ें, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट। और इसलिए हम वो दिक्कत भी देख रहे हैं। आफ्टर द कैन रोड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लास्ट वीक कि एक टाइम के बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स की फोर्स्ड रिटायरमेंट आ रही है, एंड दैट इज बिकॉज गोल्डन हैंडशेक दे दे रहे हैं कई गोल्डन कंपनीज हैंडशेक हो रहा है, राइट? बिकॉज अगर मैं मार्केटिंग, आई एम क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट मार्केटिंग, सो आई से यार मार्केटिंग में आज की डेट में कोई 50 साल का सीएमओ नहीं है। में। सो बिकॉज देयर इज अ परसेप्शन इन द मार्केट कि यू नीड समबडी स्लाइटली यंगर, जो चैनल समझते हैं, जो जेनजी समझते हैं, बंच ऑफ अदर थिंग्स, राइट, हु इज एबल टू बी मच मोर निम्बल एंड एवरीथिंग। So people who have more than 25 years experience, they find it almost impossible to get freshly recruited. उनकी कॉम भी एक लेवल पे पहुंच जाती है which becomes difficult. उनको ट्रेडिशनल मार्केटर्स का ठप्पा लगा दिया जाता है, तो फोर्स्ड रिटायरमेंट इज वेरी रियल। आई थिंक तभी ये फ्रैक्शनल सीएमओ कॉन्सेप्ट भी बहुत पिक कर रहा है कि लोग एक्सपीरियंस के साथ 4-4 5-5 कंपनीज में अपनी एक्सपर्टीज लेके आ रहे I हैं। think that is the way forward, and that is great for professionals also. Yeah, because what I think is सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लॉट ऑफ फॉर द टॉप टियर टैलेंट, बेसिक दिक्कत ये है कि समटाइम्स यू फील नॉट चैलेंज्ड इनफ। आपको लगता है यार कि यार मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, यार मैं जो कैंपेन में बना रहा था 3 साल पहले आज भी वही बना रहा हूँ, आईपीएल के लिए ऐड बनानी चल रहा है, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट उसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमिनिश होने लग जाती है, राइट? बट व्हाट इफ एक हफ्ते के अंदर आप 5 डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, right, and you have different context of industries, you're also on your feet all the time कि यार एक दिन I'm a sales head for a personal care brand, अगले दिन एक B2B सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। I would love to be in that position, राइट। and I think that's why fractional का फंडा बहुत ज़्यादा अच्छा, and I think it's the right thing to do. बट आई थिंक वहां तक पहुंचने के लिए भी आपके क्रेडेंशियल्स और स्किल्स होनी चाहिए इन प्लेस, तभी कोई आपको डिसेंट अमाउंट पे भी करेगा। सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील कि कोई भी अपस्किलिंग इनिशिएटिव का एंड आउटकम होना चाहिए, मतलब अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट उससे या तो जॉब लगनी चाहिए या सैलरी में हाइक होना चाहिए, कि यू फील कि नहीं केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनिशिएट कर सकते हो आप?
नहीं यार, 110%। मतलब अगर आप सिर्फ अपस्किलिंग और अगर आप ज्ञान के लिए पैसा दे रहे हो ना, तो तो ज्ञान कोई अवेलेबल है तो फ्री कोई में। आपको उल्लू बना रहा है। हम्म लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। 2024 में ज्ञान इज फ्रीली अवेलेबल। यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, राइट। मैं हर चीज़ जो सीखना चाहता हूँ, मतलब फ्रॉम फिक्सिंग माई कार टू लर्निंग हाउ टू बिल्ड अ रॉकेट और अ बॉम्ब, और हाउ टू डू मार्केटिंग कैंपेन्स, और हाउ टू डू कोल्ड आउटरीच, हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर फ्री। गो एंड लर्न एनीथिंग फ्रॉम पीपल, राइट। अगर अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म अगर आपको आउटकम नहीं दिला पा रहा है, तो मीन्स आपके साथ चीटिंग हो रही है, राइट। आई एम वेरी, एंड दिस इज व्हाट आल्सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट। अगर आप सिर्फ अपस्किलिंग सॉल्व कर रहे हो और आउटकम नहीं दे रहे, तो मतलब आप उसका ऑलरेडी जो ज्ञान का स्टैक है उस पे एक लेयर और ज्ञान का दे रहे हो, मतलब कुछ फायदा थोड़ी होता है जो उसका। उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मिल जाता कहीं है। ना कहीं से मिल जाता है उसको। और अगर आप सिर्फ हायरिंग के लिए सॉल्व कर रहे हो और आप अपस्किलिंग के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, मीन्स यू विल हैव अ क्वालिटी प्रॉब्लम इवेंचुअली। हम्म So you have to solve for the entire thing, and it is 100% very important. मेरे को तो यार my funda very hardly changed when I went to Reliance। तो मेरे एक बॉस ने मेरे को बोला यार कि किसी भी जॉब में अगर लोग बोल रहे हैं ना, आई एम लर्निंग अ लॉट, मतलब आप समझ लो कोई आपको उल्लू बना रहा है, हम्म ठीक है। द रिलायंस वे ऑफ लुकिंग एट इट वाज वेरी सिंपल कि यार अगर आप सही हो, इफ यू आर अ वैल्यू क्रिएटर, तो इन द लॉन्ग टर्म मार्केट्स आर सुपर एफिशिएंट टू डिटरमिन योर राइट प्राइस। राइट। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अंडरपेड हो, लॉन्ग टर्म में ओवरपेड हो, या वट एवर, राइट, ओवर लॉन्ग टर्म मार्केट्स आर एफिशिएंट। आपको जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि यार नहीं, आई एम लर्निंग अ लॉट, या मेरे को ये डेजिग्नेशन मिल रहा है, तो दैट इज नॉट। तो हिज इंटायर थिंग वाज कि यार दी ओनली रियलिटी इन योर लाइफ इज व्हाट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एवरी फर्स्ट। लर्निंग प्लस अर्निंग शुड गो हैंड इन हैंड। इट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज इट इज ओनली अर्निंग, बिकॉज दैट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन हम्म of what you deserve, because at the end of the day यार हम अपना टाइम रेंट कर रहे हैं, हाँ और right? We are an economic commodity which is being sold in the market, and the highest bidder is getting access to our time on retainer, राइट। which is what we call a job. अगर आपको वो सही तरीके से नहीं हो रहा, अगर आप बाकी प्रॉक्सीज से उसका वैल्यू इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉक्सी बीइंग लर्निंग एंड डेजिग्नेशन एंड ऑफिस पर्क्स एंड कंपनी ब्रांड एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स, देन दैट मीन्स के आप पूरी चीज़ नहीं समझ रहे। और ये मैच्योरिटी और ये रियलाइजेशन भी मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में। आई सेड डेफिनेटली यार, दिस इज प्रोबेबली नॉट व्हाट वी लर्नड एज प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास और द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट ये सही तरीका है देखने का। राइट। मैं थोड़ा मार्केटिंग पे डबल डाउन करूंगा। सो मार्केटियर्स के साथ मैं भी दिन रात इंटरेक्ट करता रहता हूँ। वन थिंग आई फील मिसिंग इज कि किसी को भी 360 डिग्री नॉलेज नहीं है। एक ही डायरेक्शन में नॉलेज है, उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। सो उसके चलते दिक्कत ये होती है कि एक पॉइंट के बाद मे बी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, कल को आप एक ट्रेडिशनल ई कॉम फर्म में अगर आपको जाना है मार्केटिंग करने, तो रोल आपसे क्रैक नहीं होगा क्योंकि आपको आधे फंडे समझ में ही नहीं आते हैं। तो जो 10xer क्लब है, इज दिस समथिंग दैट यू आर आल्सो लुकिंग कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएं, एंड व्हाट आर वन और टू थिंग्स जो आपको लगता है कि भी मार्केटियर सही नहीं कर रहे, यहाँ पे थोड़ा ओवर इंडेक्स करना चाहिए उन्हें? ये देखो दिक्कत आती है, यूर राइट, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन में आई इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ मार्केटर्स हु कम फ्रॉम एफएमसीजी। एफएमसीजी पे बहुत अच्छा मार्केटिंग टैलेंट हमेशा से रहा है। अब unfortunately my perception has become कि यार FMCG is a great breeding ground for great marketing talent, but they are great at only one thing। ब्रांडिंग। हाँ, ब्रांडिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, उनका डेटा एनालिसिस, रिसर्च, इक्विटी, लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर ग्रेट, राइट, बट लॉट ऑफ थिंग्स दे आर वेरी वेरी पुअर एट। मेरी एक सीनियर मार्केटर से बात हुई, somebody who had worked in Nestle at a very senior position, so she said यार कि आज की डेट में इशू ये हो गया है कि अगर दो मार्केटर्स हैं, दोनों एक सोसाइटी में रह रहे हैं, दोनों की वाइफ ने ब्राउनी का बिजनेस स्टार्ट किया है, और उनका बस एक टास्क है कि आपको ये ब्राउनी का बिजनेस अपनी सोसाइटी के अंदर वायरल करके डब्बे बिकवाने। सिंपल टास्क फॉर अ मार्केटर टू डू। तो उसने बोला, कहते यार जो एफएमसीजी वाला बंदा है वो ब्रांड कॉन्सेप्ट लिख के इनसाइड लिखता रहेगा, और तब तक जो बॉर्न इन डिजिटल मार्केटर है वो कैंपेन रन कर देगा। वो 4 एक्सपेरिमेंट करके वो 60 डब्बे बेच चुका होगा। हम्म सो यू आर एब्सोल्युटली राइट यार कि बहुत लोगों में एक स्किल के अंदर दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, दूसरे स्किल में दे आर वेरी वेरी पुअर। सो 10xer क्लब में व्हाट वी वांट टू डू, सो वी हैव आइडेंटिफाइड 6 डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ मार्केटिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटर हो, मार्केटिंग के पीछे जो इनहेरेंट साइकोलॉजी है, लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, आपको जानना ज़रूरी है। ब्रांड, डिजिटल, ई कॉम, D2C, एक्विजिशन, रिटेंशन, क्रिएटिव, इन्फ्लुएंसर, ये सारे एरियाज आपको समझने हैं। यू कांट वर्क इन आइसोलेशन इन 2024। आज की डेट में नहीं चलेगा। देखो आपके आज की डेट में यू कांट से यार आई एम अ ब्रांड मार्केटर। तो
ई कॉम वाली मार्केटिंग, अगर आप ई कॉम स्टोर पे ट्रैफिक लेके आना होगा, अगर आप D2C ब्रांड पे हो, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा. दैट्स नॉट बीइंग अ होलिस्टिक मार्केटर. और कहीं ना कहीं जाके आपको एक वर्टिकल लिमिट हिट करेगी. हाँ, फिर सैलरी ग्रोथ उस हिसाब सैलरी से ग्रोथ नहीं आपको होगी। नहीं होगा. यू विल से कि यार मैंने डव पे काम किया है, हम्म, तो मेरे को D2C पर्सनल केयर ब्रांड्स तो दे शुड रोल आउट द रेड कारपेट फॉर मी. हम्म, ऐसा नहीं होगा. हम्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. और ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो स्किल्स उस ब्रांड को चाहिए, कि ट्रैफिक लेके आओगे, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कन्वर्जन कॉपी कैसे लिखनी है, शॉपिफाई स्टोर पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अमेजॉन एड्स कैसे चलाते हैं, सम बेसिक थिंग्स लाइक दैट, हम्म, उस मार्केटर को नहीं पता है शायद. हम्म, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेंट और एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्या? अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसको. हम्म, वो टफ का ब्रांड है, साल में एक TVC बढ़िया बनाना है, ब्रांड ट्रैक आपको रिपोर्ट करना है, लाइफ बढ़िया चल रही है, बट ठीक है. तो आप D2C स्किन केयर ब्रांड में आके आप उसको उस सेम टूल्स के साथ नहीं बना पाओगे वो ब्रांड. एंड दैट्स वेयर वी वांट टू कम इन एंड से यार कि ठीक है, अगर आप मार्केटर हो तो दे आर बेसिक स्किल्स इन सम एरियाज दैट यू हैव टू बी ग्रेट एट. राइट। अगर आपको जीनियस बनना है, वो फिर एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है. हम्म, ठीक है, जिसमें नुआंस, एक्सपीरियंस, गलतियां, बहुत चीजें ऐड ऑन करेंगी. हम्म, बट क्या मैं आपको 0 to 90 ले जा सकता हूँ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस दीज 6 थिंग्स, सो दैट आपको लगे यार ठीक है, नाउ आई एम व्हाट इज कॉल्ड, जैसे फुल स्टैक इंजीनियर होता है, हाँ, तो राइट। एक में क्या मैं फुल स्टैक मार्केटर बन सकता हूँ इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. नॉलेज सारी चीज़ों की हो और जब डिप्लॉय करना हो उस पर डबल डाउन करते जाओ whenever you एब्सोल्युटली, are going. Right. एब्सोल्युटली. I think one piece of marketing that I find really interesting, I think this is the area that I'm also operating in, is influencer marketing. या So, do you feel कि अभी जो अपने current age के marketeers हैं, ये वाली फील्ड को अभी कम एक्सप्लोर किया है? Because I tell you, whatever brand ads I see, those ads are not built for recall. If I talk about my page also, or the category that I operated, attention span audience का right now is 6 to 7 seconds at max. If you're बिल्कुल. creating a reel of 30-40 seconds. So do you feel कि इस टाइप की मार्केटिंग में जब आपको इतने कम अटेंशन स्पैन पे काम करना है तो एक पूरी होलिस्टिक नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे. इफ यू कम विद सम प्री कंसीव्ड नोशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक मार्केट. 100% यार. आई थिंक उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अटेंशन स्पैन डिमिनिश हो रहे हैं. मतलब कि गोल्ड फिश जैसे अटेंशन स्पैन है, मतलब ये 6-7 साल पहले मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेज में, मतलब ये दीज थिंग्स वर बीइंग डिस्कस्ड. इफ यू आर राइट नाउ कमिंग टू द रियलाइजेशन कि यार अटेंशन स्पैन कम है, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, मेरे को इन्फ्लुएंसर, मेरे को कंटेंट करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी लेट टू द गेम. तो आप Right. ऑलरेडी एक बैकफुट पे हो. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अगर आप सिर्फ चैनल की तरह देख रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग को अगर आप सिर्फ चैनल की तरह देख रहे हो, देन मीन्स आप अभी गाड़ी बहुत आगे पहुंच चुकी है एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हाँ, फाइंड द क्योंकि अभी ट्रेन. मैंने देखा है कि करते क्या है लोग, किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया, सारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एग्जीक्यूशन उस एंड पे दे दिया. आपने कहा कि यार मेरे को जब ब्रांड का कोई भी वीडियो आएगा जो बड़ा TVC शूट हो रहा है, मैं तभी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ. ये चीज़ तुम इंडिपेंडेंट रन कर लो, ये 2-3-4 पॉइंट्स हैं, मेक श्योर करना ये रहे इसके अंदर. तो वहाँ पे उतना हाई इन्वॉल्वमेंट आपने रखा नहीं, जबकि वो चैनल भी काफ़ी ग्रो करता है या पोटेंशियल है उसमें. एब्सोल्युटली यार. आप जानते हो, मतलब यू नो ऑल दीज थिंग्स के यार कंटेंट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड. आई फील, मैं आज भी बोलता हूँ यार, आप प्रोडक्शन आउटसोर्स करो, बट आपका कंटेंट जो है, आपका आइडिएशन जो है, जो ओनरशिप है कंटेंट, और मैं कंटेंट में इन्फ्लुएंसर को भी उसके अंदर डाल रहा हूँ, वो तो यार आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज की डेट में आप ब्रांड नहीं बना सकते यार. मतलब आप 30 सेकंड की IPL में ऐड दिखा दोगे अगर हॉटस्टार के ऊपर, उससे ब्रांड नहीं बनेगा. रिकॉल उससे ही नहीं रह गया है किसी को याद. चलो रिकॉल भी आ गया. अगर आपने बहुत पैसा आपके पास, आपने बहुत बढ़िया करेक्ट टाइप के एड्स बना दिए. आपने बहुत अच्छी फंडिंग, में क्रेडिट के बारे में बात नहीं करूँ, बट अगर बहुत बढ़िया आपने फंडिंग उठा ली है, पैसा अगर आपके पास बर्न करने को है, तो भाई करो. आपको रिकॉल भी हो सकता है मिल जाएगा, बट आपका ब्रांड नहीं बनेगा. आपको अवेयरनेस क्रैक हो जाएगी, बट आपका ब्रांड नहीं बनेगा. एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दोस थिंग्स. सो यू हैव टू बी श्योर कि यार ये सारी चीज़ें इन हाउस रहें, हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म चैनल इसमें इन्वेस्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, लोग आज की डेट में बोलते हैं यार जोमेटो ने जो साहिबा बाली के साथ जो चीज़ें की हैं ना, देयर आर एब्सोल्युटली ग्रेट कंटेंट मार्केटिंग इकोसिस्टम. वो ये नहीं जानते कि यार जोमेटो स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट 10 years बैक. ठीक है, With quirky tweets and everything. एवरीथिंग दे स्टार्टेड विद द स्मॉलेस्ट थिंग. मतलब वो टेस्टी के क्लोन वीडियोस भी बनाते थे, मतलब एंड एवरीथिंग. यार आप 10 साल के बाद उसके रीप कर रहे हो बेनिफिट्स. तो दिस इज अ लॉन्ग गेम. इन्फ्लुएंसर्स इज अ लॉन्ग गेम. आप ये नहीं सोचो यार कि मैंने लॉन्च करना था, मैंने 50 इन्फ्लुएंसर ले लिए, एजेंसी को दे दिए पैसे, और एजेंसी ने कुछ तो बढ़िया एक्सेल शीट भेज दिया मेरे को समझ नहीं आया, बट मन को शांति हुई बहुत देख के. कि व्यूज आ गए मेरे. व्यूज आ गए, कुछ दिख गया मेरे को यार, कितने कॉस्ट पर व्यू मेरा ये आ रहा है, और जिस भी मेट्रिक से आप कंफर्ट लेना चाहते हो आप उससे ले सकते हो, राइट. बट फंडामेंटल चीज़ है कि यार कि कोई आपको फिर उल्लू बना गया.
एंड और ये चीज़ें मिस सेलिंग बहुत हो रही है। सेम इन्फ्लुएंसर कहीं से 1 लाख रुपए का कैंपेन कर रहा है, सेम इन्फ्लुएंसर किसी दूसरी कंपनी को 5 लाख रुपए का वो दे रहा है, एंड और वो मिस सेलिंग हो रही है। लॉट ऑफ एजेंसीज आर ऑल्सो टू ब्लेम फॉर दैट। बट अगर आप ये सेम चीज़ इंटरनली करोगे, आप सेम रिलेशनशिप्स, जैसे हम जब मैं डीजल पे काम कर रहा था, तब वी इंश्योर्ड दैट द इन्फ्लुएंसर्स वी वर्कड विद, हमारा सबके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो कि यार हाँ। तेरे को एक पोस्ट का नहीं है तो 3 साल तेरे साथ काम करेंगे। जैसे हम्म। वेदर इट इज से फैशन में द यूजुअल नेम्स, राइट। सो जिसके साथ भी काम करेंगे 2 साल से नीचे काम नहीं करेंगे, ताकि उनको ये हो, एक्सक्लूसिविटी रखेंगे, ताकि ये हो कि यार अगर आपने फैशन के बारे में, डेनिम के बारे में बात करना है तो आप डीजल के बारे में बात करोगे। तो वी हैड अ प्रोग्राम कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द ब्रांड, हम्म। कि हम उस तरीके से लोगों को डेवलप करेंगे, हम्म। एंड वी विल हैव द पेशेंस टू टेक अ लॉन्ग टर्म बेट ऑन इन्फ्लुएंसर्स, ऑन कंटेंट एंड एवरीथिंग एल्स, ताकि उस टारगेट मार्केट के अंदर जहां डीजल बिकता है, मतलब डीजल इज अ नीश प्रोडक्ट, इट्स 25,000 रुपए की डेनिम है, हर बंदा नहीं खरीदता, एस्पिरेशनल भी है कहीं पे। एस्पिरेशनल है। तो जो उसकी टारगेट मार्केट है उसके अंदर सबको पता होना चाहिए, हम्म। और वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कोच खरीदना चाहते हैं, जैसे इफ योर वाइफ वांट्स टू बाय कोच, I know that she's following Masoom Minawala. I know she's following Anayta, and I know she's following Komal Pandey and bunch of other people. क्या इनके साथ मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करके लॉन्ग टर्म बढ़िया अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट बनवाऊं, जिससे हम देख सकें कि यार ठीक है, शी हैज समथिंग, मतलब इट डजंट सीम लाइक वन ऑफ सेलिंग, एक वन नाइट स्टैंड ना लगे, राइट। जो बहुत इन्फ्लुएंसर कंटेंट आज की डेट में लग रहा है। राइट। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डिफरेंट अपस्किलिंग प्रोग्राम्स जो लोग मार्केटिंग के नाम पे लॉन्च करते हैं कि 6 मंथ का कर लो, हम्म, 2 लाख का है, 3 लाख हम्म, का है, एंड आउटकम कुछ नहीं होता, बट हाँ। जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग आते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स डू यू थिंक आर वैल्यू एड और शुड वन परस्यू और नॉट? ये लॉट ऑफ देम आर वैल्यू एड्स, ठीक है, ऐसे नहीं है कि देखो सब सब खराब है। आपको बहुत क्लियर पिक्चर हो जानी चाहिए आपको क्या चाहिए हम्म। प्रोग्राम से। कुछ लोग देखो मार्केट में आते हैं लोगो खरीदने, और वो हम्म। बहुत बढ़िया मार्केट है वो। ये किसी एक आईएम से कुछ आपको बिल्कुल, सर्टिफिकेशन मिल गया, काम हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने शायद, हो सकता है कि मैंने मेरे टाइम में कैट वैट की पढ़ाई नहीं की, शायद मैंने व्हाटएवर एबीसी यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए कर लिया, या घर वाले शादी करा रहे थे, मैंने बोला नहीं 2 साल का एक्सटेंशन लेके एमबीए कर लेता हूँ उसका। लॉट ऑफ पीपल टेक मिस स्टेप्स, बट अभी 10 साल के बाद उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। शी हैज प्रूव्ड herself and she feels यार कि मे बी नाउ द logos on my CV are becoming a vertical limit to हम्म। me getting the next level of opportunities. उसको लोगो खरीदना है, हम्म। then that is the right thing to do. राइट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एलुमनाई स्टेटस मिल जाएगा और उसमें अचानक से यू विल हैव अ सेट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, तो देखो बॉस नहीं होगा। हम्म। अगर आप सोच रहे हो कि अचानक से आपको कोई ऐसा ज्ञान बता देंगे जो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, बुक्स या पॉडकास्ट से, तो देखो सर नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो यू नीड टू बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। तो आई एम नॉट सेइंग कि कुछ अपस्किलिंग कोर्सेज खराब है या कुछ नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन फेयर होनी चाहिए कि यार हम्म। मैं ये करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपके, मतलब जो जिस भी मार्केट में आप हैं उसमें आप करें। वन एनी वन कोर्स, एनी वन इंटरवेंशन विल नॉट बी एबल टू टिक ऑल द बॉक्सेस। हाँ, या तो आप प्लेसमेंट के लिए ओवर इंडेक्स करो, या तो आप बिल्कुल। लर्निंग के लिए, या ये लोगो जो आपने हाँ, कहा हाँ। उसके लिए ओवर इंडेक्स बहुत करो। बढ़िया चीज़ है ना यार, अगर मेरे हम्म। को लोगो खरीदना है, लोगो खरीदना है यार, मतलब ना आई मुझे नो। एग्जाम देना है, ना कुछ करना है, सिंपल एनरोल करना है, 6 महीने क्लास करनी है और वो आ गया। Absolutely. Like I know a very senior marketer who वो इमीडिएटली जर्नलिज्म में बैचलर्स की उन्होंने, जर्नलिज्म में अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर अमेजिंग कंपनीज, नेटफ्लिक्स अमंग देम, एंड नाउ शी इज मूव्ड ऑन टू वेरी सीनियर रोल्स। उनके सीवी पे कोई एमबीए नहीं है, हम्म। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद वो धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ग्रो करती रही। तो शी नीडेड लोगो। सी लाइक मेरे को चाहिए यार, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही एक पॉइंट के बाद, तो उसने खरीदा ना। सी लाइक, और मैंने जब उनसे पूछा यार आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक यार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्वालिटी ऑफ पीपल हु वुड कम इन वो बहुत सही होगी, बट मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हुई। हम्म। बट ठीक है, अभी मिल गया, मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम आई एम XYZ, आई एम अ alumni. राइट। आई थिंक दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर विजन फॉर 10xer क्लब 1 year डाउन द लाइन? Here the vision is very clear, right? I think हम जानते हैं कि upskilling is fundamentally broken. हम जानते हैं hiring is fundamentally broken. The problem is very, very big in marketing. The problem is big in many other spaces. We want to ensure that this becomes the de facto destination in the country, right? For people to truly learn things which they can apply, like next morning, right? कोई आपको ज्ञान, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे, किसी को ये ज्ञान नहीं चाहिए कि यार इन्फ्लुएंसर इंपॉर्टेंट होता है, या इन्फ्लुएंसर X% से Y% स्पेंड हो गया है, वो सबको पता है यार, हम्म। ना? क्या मैं आपको 2 चीज़ें बता सकता हूँ कि अगर आपको चॉइस करनी है तो दिस इज अ चेकलिस्ट, प्लीज गो एंड अप्लाई, प्लीज अडेप्ट इट टू योर कॉन्टेक्स्ट,
टेक दिस चेकलिस्ट। अगर आपको आरओआई देखना है, क्या मैं आपको एक आरओआई मॉडल दे सकता हूँ कि आपने बोला यार कि ये एग्जाम्पल टेक में ऐसे अप्लाई किया था, मैं आई कैन गो बैक टुमारो मॉर्निंग और मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में इसको अडेप्ट करके एक आरओआई मॉडल मैं मेरे बॉस को प्रेजेंट कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड, राइट? वी वांट टू आर्म पीपल विद ट्रू फ्रेमवर्क्स, और उसमें जो भी मतलब ऑल ऑफ दीस टॉप मार्केटर्स हु कम इन, कोई ऐसे आके नहीं बोलेगा यार मेरी लाइफ की स्टोरी थी, मैंने ऐसे स्टार्ट किया, तब तो हम ये करते थे। वो ज्ञान नहीं सुनना यार किसी को, सीधे मतलब एग्जीक्यूशन पे आओ। तुम्हारी केस स्टडी, तुम्हारा बढ़िया काम नहीं सुनना। वो फ्री वीडियोस हैं उस पे, तुमने कहीं ना कहीं जाके पैनल डिस्कशन करके वो बात करी हुई है। बट कैन यू से इफ यू हैव बीन इन ओगिलवी फॉर 20 ईयर्स, क्या तुम आके बता सकते हो कि यार दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ऑन व्हाट मेक्स अ ग्रेट एड? एक बढ़िया एड के अंदर ये 10 चीजें होनी चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है आफ्टर 20 ईयर्स एट ओगिलवी। दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी वो कॉपीराइटर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये क्लाइंट ने ये, वो स्टोरी बहुत बढ़िया है, सुनो, बट गुड फॉर पॉडकास्ट। दैट्स ग्रेट फॉर पॉडकास्ट, वो हम लोग बनाते रहेंगे, राइट? मतलब बट उसके लिए किसी को पैसे देना और सर्टिफिकेट लेना, आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू, दैट्स व्हाट वी वांट टू चेंज. And so we want to become the de facto destination in India where people come, they truly learn things which are valuable, and then they become a community of people who are truly opening doors for each other. And then we are able to create a pipeline of talent for top companies कि यार आपको मार्केटिंग का टैलेंट अगर चाहिए तो देयर इज नो बेटर प्लेस, बिकॉज हम क्योंकि आप उसको डेटा पॉइंट्स भी तो कैप्चर करो कि साल भर कितना इंटरेक्ट किया, किसने कितना एंगेज किया है, या और इसका एक मे बी एवेल्युएशन मैट्रिक्स भी होगा आई सपोज इन प्लेस की, जो 100%. आपके यहाँ टॉप फैकल्टी वो बताएगी कि हाँ ये इस रोल के लिए सूटेड है, मे बी इट्स अ गो हेड फ्रॉम माय साइड। या तो एवरीबॉडी मेकिंग नोज, मतलब आपने एक एंट्री लेवल फिल्ट्रेशन लगा दिया, आपने सबसे सही लोग एक कम्युनिटी के अंदर, द पीपल केम इन, यू हैव अ सर्टेन एंट्री बैरियर, देन ऑन टॉप ऑफ इट दे वर ट्रेन्ड बाय द बेस्ट पॉसिबल पीपल. राइट। या तो अगर आप उन लोगों को ट्रस्ट नहीं करते फिर तो चलो बात ही अलग होगी, बट द बेस्ट पॉसिबल पीपल, जो आप बेस्ट टीम खड़ी कर सकते हो, वो बेस्ट टीम ने इन लोगों के साथ काम किया है, इनको मेंटर किया है, और उसके बाद अ सर्टेन सेक्शन ऑफ देम आर अवेलेबल टू बी हायर्ड. राइट। Then it becomes a win-win situation for also for example, अगर as a marketer at Amazon, right, when I used to struggle to hire quality talent, मेरे को हमेशा लगता था यार ये लोग छुपे कहाँ हुए हैं, where is great talent छुपा, and I'm sure you have the same experience जब भी hire करने जाते हो. 100 इंटरव्यूज आप लो, उसमें 2-3 है जो याद रह जाते हैं कि काफी अच्छा टैलेंट निकल गया बिल्कुल. तो तब तो क्या तुम ऐसा पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो जिससे तुम्हें लगे यार कि फाइनली somebody who truly understands rather than कोई रिक्रूटर जो कीवर्ड देख के फिल्टर कर रहा है, somebody who understands it is telling me what I want. और कल को जब पोजीशन मेरे यहाँ क्रिएट हो रही है तब आई ऑलरेडी नो द 5 मोस्ट अमेजिंग पीपल हु विल बी सुटेबल फॉर दैट पोजीशन. So that's what we are working with a lot of hiring partners also to ensure. Yes, I think exciting times ahead. Or Salary Club, 10xer Club, I think we'll be able to solve a little bit of it, but a lot needs to be done on the ecosystem overall as well, I think. 100%. And I feel like people who are listening to this in this space of upskilling, community hiring, or associated spaces, we need 100 startups हाँ, to be able to even take a shot at the problem. Because ये 50 साल का एक जो legacy issues हैं, इसको निकालते निकालते, and out of those 100 startups which come in, 10 need to get it right for Right. this to truly become समथिंग एल्स. मतलब फॉर जो हम कह रहे हैं ना कि यार न्यू इंडिया के लिए ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो बना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगर हमें बनना है तो यार हमें ये नहीं हो कि यार द बेस्ट कैंडिडेट इज गेटिंग फिल्टर्ड आउट बिकॉज किसी को कीवर्ड समझ नहीं आए. वी स्टिल कांट बी लिविंग विद दीज इकोसिस्टम्स यार. मतलब राइट। तो 100 startups will need to come into these spaces, 10 of them need to get it right to truly solve these problems, and we want to be one of those 100, and hopefully we want to be one of those 10 who get it right. Right. Thank you so much, Harinder, for coming. It was great interacting with you. Thank you so much. Thank you so much, and all the best for taking this podcast and scaling it 100x from what it is currently. Fingers crossed. Let's see where it goes. See you. Thank you.